سب سے پہلے بات کریں لاک ڈاؤن میں نرمی ہوگی۔ عید کے بعد شاپنگ مالز اور مارکیٹ صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق عید کے بعد مارکیٹ، شاپنگ مالز اور جنرل کریانہ سٹورز صبح 9 سے شام 7 بجے تک حکومت کے جاری کردہ SOPs کے مطابق کاروبار کر سکیں گے، جبکہ میڈیکل سٹورز 24 گھنٹے کھلی رہیں گی۔ اسی طرح کاروبار کرنے والے شاپنگ مالز کی فوڈ کورٹ اور پلے لینڈز بند رہیں گے، جبکہ ریسٹورنٹس کھولنے کا اوقات بعد میں بتائے جائیں گے۔ کورونا کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب بتایا گیا ہے کہ عید کے دنوں میں کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے کورونا کمیٹی کے اجلاس میں مزید فیصلے بھی متوقع ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، کراچی طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے افراد کی شناخت کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ٹیم نے دانتوں کے ریکارڈ کی مدد سے پہلی لاش کی شناخت بھی کر لی ہے۔ پہلے شہید کی شناخت دانتوں کے ریکارڈ سے کی گئی ہے۔ 62 سالہ محمد عطا اللہ کے دانتوں کے علاج کا ریکارڈ ان کی فیملی نے فراہم کیا تھا۔ UHS کی ٹیم نے حادثے میں جاں بحق ہونے والے 21 افراد کے دانتوں کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے انچارج پروفیسر جاوید اکرم نے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کا میڈیکل یا ڈینٹل ریکارڈ فراہم کریں۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اس وقت 589 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ مجموعی تعداد 20,656 ہو چکی ہے۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کے مطابق پنجاب میں کرونا وائرس سے مزید 15 اموات ہوئی ہیں اور مجموعی طور پر 352 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ لاہور میں 73 روز کے دوران آپ کو بتائیں کہ 9,856 اموات ریکارڈ ہوئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ صدر YDA پنجاب ڈاکٹر سلیمان حسیب اور سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر عاطف چودھری میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ صدر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب ڈاکٹر سلیمان حسیب چودھری اور سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر عاطف مجید چودھری کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے۔ ڈاکٹر سلیمان اور ڈاکٹر عاطف کرونا وارڈ میں فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ دونوں ڈاکٹرز عید کے روز بھی ڈیوٹی پر مامور رہے ہیں۔ آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ ڈاکٹرز بھی کرونا وائرس کا شکار ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ ادھر صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی سوشل میڈیا ٹیم کے سربراہ شہباز بدر بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کے سوشل میڈیا سیل کے سربراہ شہباز بدر کو بھی کرونا وائرس ہو گیا ہے۔ شہباز بدر نے عید الفطر کی نماز میاں شہباز شریف کے ہمراہ ان کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں ادا کی تھی، جبکہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد شہباز بدر نے اپنے آپ کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے، جبکہ انہوں نے دوست احباب سے اپنی جلد صحت یابی کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل بھی کی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، پنجاب میں ایمرجنسی سسٹم کی بہتری اور ترقی کے فنڈز میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔ نئے مالی سال میں ایمرجنسی سروسز کے نئے منصوبوں کے لیے صرف 3 کروڑ 70 لاکھ مختص کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ ایمرجنسی سروسز کے لیے محکمہ داخلہ اور دیگر اداروں کی جانب سے اضافی فنڈز مختص کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ اس کے برعکس پنجاب میں جاری مالی بحران کے باعث محکمہ خزانہ پنجاب اور PND بورڈ نے فنڈز کو کٹ لگا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایمرجنسی سروسز کے جاری منصوبوں کا بجٹ بھی 70 کروڑ روپے تک محدود کر دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی سروسز کی مد میں ریسکیو سینٹرز کی بحالی اور نئے سینٹرز کی تعمیر شامل ہوتی ہے۔ ادھر پنجاب کابینہ میں تبدیلیاں، وزراء کو کارکردگی رپورٹس جمع کروانے کی مہلت کا آج آخری روز ہے۔ چھٹیوں کے اختتام پر کابینہ کے وزراء کی اکھاڑ بچھاڑ شروع ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ میں نئے اراکین کو موقع دیا جائے گا یا پھر پرانے ہی کام کریں گے۔ وزراء کی کارکردگی رپورٹس پر وزیر اعلیٰ یہ فیصلہ کریں گے۔ پنجاب کابینہ اراکین کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جانب سے 15 روز کے اندر اپنی کارکردگی رپورٹ جمع کروانے کی مہلت دی گئی تھی، جو آج ختم ہو جائے گی۔ تاہم عید کی چھٹیوں کے باعث یہ رپورٹس رواں ہفتے میں جمع کروائی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ کے اندر کون رہے گا، کون جائے گا، ناقص کارکردگی والے وزراء کی چھٹی ہوگی یا نہیں، اس بارے میں اگلا ہفتہ اہم قرارداد دیا گیا ہے۔ کچھ بات کریں موسم کی تو شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، پرندے تک ولولا اٹھے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی بارش نہ ہونے کی پیش گوئی کر دی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا درجہ حرارت کم سے کم 27 اور زیادہ سے زیادہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 19% جبکہ رفتار 13 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت کے باعث گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ واٹر پارکس اور سوئمنگ پولز کھولنے کی اجازت دے جبکہ بجلی کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ بہت زیادہ گرمی ہے جی، گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجلی جو ہے وہ بلا کسی رکاوٹ کے جاری رہنی چاہیے۔ بجلی کی ہونے سے ہی بجلی گرمی کی شدت کو کچھ کم کیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ نے جس طریقے سے لاک ڈاؤن کے اندر جو نرمی دی ہے، اگر وہ واٹر پارکس اور سوئمنگ پولس وغیرہ کو بھی اگر وہاں پر وہ نرمی دے دی جائے تو وہاں پر میرے خیال سے عوام زیادہ بہترین طریقے سے اس موسم کا کوئی نہ کوئی حل نکال سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں تک بارش کا امکان نہیں، جبکہ آئندہ جمعہ تک بھی شہر کا موسم مزید خشک اور گرم رہے گا۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ وسیم احمد، سٹی 42۔ آج عید کے تیسرے روز شدید گرمی سے تنگ شہریوں نے نہر پر ڈیرے ڈال دیے۔ لاہور یہ بڑی تعداد میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے نہر پر نہاتے رہے۔ عید کے تیسرے روز گرمی سے تنگ آ کر شہریوں نے نہر پر ڈیرے ڈال لیے۔ فیملیز کے ساتھ ساتھ نوجوان، منچلے اور بچے بھی نہر میں نہا کر گرمی کی شدت کو کم کرتے رہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید کے 2 دن گھر میں گزارے، شدید گرمی میں نہر پر آئے ہیں۔ یہاں گرمی کی شدت دور ہوتی ہے اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ صرف لاہوریے ہی نہیں بلکہ گجرانوالہ سے آئے بچوں نے بھی گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے نہر کا رخ کیا اور خوب ڈبکیاں لگائیں۔ گرمی کی وجہ سے 2 دن ہم نے گھر میں گزارے ہیں اور تیسرا دن ہم گرمی کی وجہ سے ہم لوگ نہر پہ آ گئے ہیں گرمی کی شدت کو دور کرنے کے لیے۔ گجرانوالہ سے آئے ہیں یہاں پہ لاہور میں، 2 دن گھر میں گزرے ہیں اور آج ہی پروگرام بنا ہے گرمی کی شدت دور کرنے کا، اس لیے نہر کا رخ کر۔ کورونا وائرس کے پیش نظر شہر میں پارکس بند ہونے کی وجہ سے شہری نہر پر نہانے آئے۔ اس موقع پر شہریوں کی جانب سے سماجی فاصلے کا بھی خیال نہ رکھا گیا۔ نوجوان، منچلے اور بچے نہر میں خوب ڈبکیاں لگا کر عید کے تیسرے دن کو انجوائے کرتے رہے۔ کیمرامین عباس بٹ کے ساتھ یاور چودھری، سٹی 42۔ پولیس کی کارکردگی کی بات کی جائے تو جدید ٹیکنالوجی اور وسائل کے باوجود لاہور پولیس گاڑیاں اور موٹر سائیکلز چھیننے اور چوری کی وارداتوں کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ 5.5 ماہ کے دوران شہری 3230 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے محروم ہوئے ہیں۔ لاہور میں پولیس کے ناکے، پولیس کی مختلف فورسز، سیف سٹی اتھارٹی کے کیمرے اور موبائل ٹیمیں بھی ڈاکوؤں اور چوروں کو نکیل نہ ڈال سکیں۔ جنوری سے 15 مئی تک شہری سینکڑوں کاروں، موٹر سائیکلوں اور دیگر قیمتی اشیاء سے محروم ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پہ 5 کاریں اور 196 موٹر سائیکلیں چھین لیں۔ چور بھی 154 کاریں اور 2616 موٹر سائیکلیں اور 257 دیگر گاڑیاں لے اڑے۔ شہر میں رواں سال ڈکیتی کے دوران شہریوں کو قتل کرنے کے واقعات میں بھی خوفناک حد تک اضافہ ہوا۔ پولیس کے اپنے ریکارڈ کے مطابق رواں برس 16 افراد ڈکیتی مزاحمت پہ قتل ہوئے، جبکہ اسی عرصہ میں گزشتہ سال 5 افراد ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہوئے۔ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جن میں موومنٹ زیادہ ہوتی ہے لوگوں کی، تو اس پہ ہم فوکس کریں گے اور اس کو پریونٹ کریں گے۔ سیکنڈ، اس کا امپورٹنٹ پارٹ ہے ان کیسز کو ٹریس آؤٹ کرنے والا، تو انویسٹیگیشن کو ہم نے اس میں ان ڈیوٹی سے بالکل فری رکھا ہے۔ شہر میں ڈولفن اسکواڈ کی 545 سے زائد موٹر سائیکلیں، پولیس رسپانس یونٹ کی 110 گاڑیاں، جبکہ 84 تھانوں کی نفری جرائم پیشہ افراد کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ دوسری جانب انویسٹیگیشن ونگ کی ناقص کارکردگی کے باعث رواں سال اب تک چوری اور ڈکیتی کے کسی ملزم کو عدالتوں سے سزا نہ دلوائی جا سکی۔ عرفان ملک، سٹی 42۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی کراچی طیارہ حادثہ کے شہداء پائلٹ سجاد گل، بیوروکریٹ خالد شیردل، ایئر ہوسٹس انم خان کی رہائش گاہوں پر آمد، اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور شہداء کے بلند درجات کے لیے دعائے مغفرت کی۔ وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے کراچی فضائی حادثے کے شہید پائلٹ سجاد گل کے گھر جا کر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ اعجاز شاہ نے کہا کہ اس حادثے میں ہم نے قیمتی جانوں کی صورت میں قومی اثاثے کھو دیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے چیف ایگزیکٹو اربن یونٹ خالد شیردل شہید کی رہائش گاہ پر ان کی والدہ، بھائی مجاہد شیردل اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ شہید ایک فرض شناس، محنتی اور ایماندار آفیسر تھے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد تعزیت
के लिए तैयारा हादसे में शहीद एयर होस्टेस अनम खान के घर धर्मपुरा पहुंची। सूबाई वज़ीर सेहत ने अनम खान के अहले खाना से ताज़ियत और शहीद अनम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। हुकूमती वज़रा और स्पीकर पंजाब असम्बली ने शोहदा के घरों में जाकर शोहदा के अहले खाना से इजहार यकजहती करते हुए ये पैगाम दिया कि हुकूमत उनके दुख में बराबर की शरीक है। अल्लाह ताला तैयारा हादसे में शहीद होने वाले अफराद के दर्जात बुलंद करे और अहले खाना को सब्र जमील अता करे। तैयारा हादसा में शहीद होने वाले मारूफ सहाफ़ी इंसार नकवी, खालिद शेरदिल और तैयारे के अमले समेत दीगर शोहदा के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मदरसा तालीमुल कुरान न्यू सामनाबाद में मुनक्किदा तकरीब में कुल मसाले के उलमा बोर्ड के सरबराह मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, शिया उलमा कौंसिल के मरकजी नायब सदर उलामा हाफिज काजिम रजा नकवी समेत कासिम अली कासमी, मुफीक सैयद आशिक हुसैन शाह, उलामा असगर आरिफ चिश्ती, मलिक मोहम्मद आसफ, चौधरी सकीर अब्बास वर्क, शाहिद जाफरी, मासूम जैदी और दीगर ने शिरकत की। मौलाना आसिम मखदूम का कहना था कि तैयारा हादसा में शहीद होने वाले भाई बहनों के अहले खाना से भरपूर इजहार ताज़ियत करते हैं। तैयारा हादसा की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करवानी चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात रोनुमा ना हो सकें। बात करें कि भारत में फंसे मजीद 176 पाकिस्तानियों की वतन वापसी कल होगी। पाकिस्तानी शहरी भारत में कोरोना वबा लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे। तमाम पाकिस्तानी वाघा अटारी के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जमान वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी भारतीय सूबों गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली में फंसे हुए थे। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत ईद के तीसरे दिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ने प्रोविंशियल मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबरान के चुनाव के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। इजलास में सेक्रेटरी सेहत बैरिस्टर नबील अहमद अवान, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जनाब हॉस्पिटल गौहर एजाज, वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा, डॉक्टर महमूद शौकत, उनजा हाशमी, एडिशनल सेक्रेटरी सलमान शाहिद, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ तुफैल, प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास के दौरान मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट के तहत प्रोविंशियल पॉलिसी बोर्ड के मेंबरान के चुनाव के अमल का जायजा लिया। इजलास के मेंबरान ने वज़ीर सेहत को सर्च एंड नोमिनेशन कमेटी के तजावीज़ पेश की। सूबाई वज़ीर का कहना था कि सेक्रेटरी सेहत बैरिस्टर नबील अहमद चुनाव के अमल की निगरानी करेंगे। मेंबरान के चुनाव से पहले उनका एकेडमिक और दीगर कैरियर्स का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। हुकूमतें आईं और गईं मगर मैशत की रीढ़ की हड्डी कहलवाने वाले फैक्ट्री मजदूरों के मसाइल हल न हो सके। पंजाब में फैक्ट्री मजदूरों की तादाद 50 लाख से जायद है मगर रजिस्टर्ड सिर्फ 11.5 लाख हैं। पाकिस्तान में मजदूर आज तक अपने बुनियादी हकूक से महरूम हैं। पंजाब के 50 लाख से जायद फैक्ट्री मुलाजमीन में सोशल सिक्योरिटी के पास रजिस्टर्ड मुलाजमीन की तादाद सिर्फ 11,50,000 है। जराये के मुताबिक रजिस्टर्ड कारकुनान में भी सेहत सहूलियात की फराहमी के लिए कार्ड का इजरा सिर्फ 4,75,000 मजदूरों को ही हो सका। सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान के मुताबिक गुज़िश्ता 20 साल में महकमे की डिजिटलाइजेशन के लिए कोई इकदाम न किया गया, जिसके बायस मजदूरों के मसाइल में इजाफा हुआ। अंसर मजीद खान ने बताया कि फैक्ट्री मालिकान जानबूझकर मजदूरों की दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं करते। उन्होंने मजीद बताया कि इदारे की कवानीन में तरमीम की जा रही है। कोशिश है कि मजदूर आइंदा अपनी महकमाना रजिस्ट्रेशन खुद करवाने के काबिल हों। डेटा जो है वो प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयर ने और उस डाटे को हमने रजिस्टर करना है। उसके ऊपर इंस्पेक्शंस होती हैं, क्या उन्होंने डाटा ठीक दिया है, जाके हम इंस्पेक्शंस करते हैं, लेबर की हम तादाद देखते हैं, तो उसमें मुश्किलात का सामना आता है। लेकिन उसके ऊपर हम अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और अभी डिस्कशन में है कि हुकूमत की जानिब से कम अज कम उजरत 17,500 रखी गई है, लेकिन महकमा लेबर ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री मुलाजमीन की बड़ी तादाद को आज तक उजरत सिर्फ 9,000 से 12,000 के दरमियान ही मिल रही है। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा, साउथ बट, लाहौर। कमजोर हुकूमती रेट के बायस सरकारी नखनामा तबाह। सरकार ने चिकन की कीमत 260 रुपए फी किलो मुकर्रर की, लेकिन चिकन कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। 260 के बजाय 350 से 400 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि आम खरीदारों को चकमा देने का सिलसिला भी जारी है। जिला इंतजामिया और पंजाब हुकूमत का चिकन की कीमतों पर अमल दरामद कराने के लिए क्रैकडाउन भी बेसूद रहा। जिला इंतजामिया के मुकर्रर करदा सरकारी निर्ख 260 रुपए फी किलो पर चिकन की फरोख्त का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका।
शहरियों का कहना है कि दुकानदार 260 रुपए फी किलो के बजाय 350 रुपए से 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। चूजा वो खाने वाला नहीं है, बड़ा मुर्गी नहीं है, बड़ी मुर्गी किसी के पास नहीं है, जिसके पास है वो 350 रुपए किलो बेच रहा है। अच्छा हाँ, तो कीमत तो 260 रुपए। 260 वो छोटी मुर्गी है 260 रुपए, बड़ी मुर्गी 350 बिक रही है। ठीक है। सदर ट्रेडर्स एसोसिएशन तारिक जावेद और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान शहजाद इकबाल भुट्टा भी हुकूमत पर बरस पड़े। सदर तारिक जावेद का कहना है कि सप्लाई और डिमांड में तवाज़ुन न होने के बाइस कीमतों में उतार चढ़ाव है। ताहम मियां असलम इकबाल भी रवायती सियासतदान निकले हैं, स्टेक होल्डर्स के बजाय दूसरों से मीटिंग्स करते रहे। हुकूमत पोल्ट्री फार्मर्स को प्रोडक्शन बढ़ाने का कहे ताकि डिमांड और सप्लाई का खला पूरा हो सके। असलम इकबाल साहब ने बताया कि उनके साथ वादा हुआ है वो एसोसिएशन का। अब वो मीटिंग करते हैं ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन से, जो ब्रायलर बेचने वाले लोग हैं, या वो फीड मिलर्स से मीटिंग करते हैं। जो स्टेक होल्डर हैं लाहौर के, जो मुर्गी बेचने वाले हैं, उनके साथ कभी कोई मीटिंग नहीं हुई। और मैं बड़ा इस बात पे अफसोस भी है कि मियां असलम इकबाल साहब रवायती सियासतदान भी नहीं है और रवायती मिनिस्टर भी नहीं है। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान शहजाद इकबाल भुट्टा का कहना था कि जब 190 रुपए जिंदा मुर्गी होगी तो 260 रुपए में कैसे गोश्त बेच सकते हैं। जिला इंतजामिया सारी तवज्जो दुकानदारों और ट्रेडर्स के खिलाफ कार्रवाई पर देती है। आज सुबह की बात है कि 200 रुपए मुर्गी जिंदा बिकी है। ठीक है। एक दुकानदार जब 200 रुपए मुर्गी खरीदेगा तो बेचेगा 260 कैसे बेचेगा, मुझे बताएं। परों समेत जो मुर्गी है वो 200 रुपए खरीदी गई है। चिकन की कीमतों में अदम इस्तेकाम ने सरकार की रिट का पोल खोल दिया। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। ईद के पकवान हो और साथ में खमीर से बने नान ना हो, ये कैसे मुमकिन है? ईद तातीलात में तंदूरों पर नानों की तैयारी और खरीदो फरोख्त के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान यूनुस। ईद के मौका पर तकरीबन हर घर में अनवाओ इकसाम के फरमाइशी खाबों की तैयारी अरूज पर है, मगर रमजान मुबारक में सहरी और अफ्तारी की तैयारियों से थकी खवातीन की खाबों की तैयारी से कबल पहली शर्त ही रोटियों की बजाय तंदूरी नानों की खरीद का मुतालबा नजर आ रहा है। ताज़ा भी रमजान करीम गुजरा है, उसकी वजह से लोगों ने सारा रमजान में सहरियाँ अफ्तारियाँ वगैरह की होती है घरों में, जिस वजह से उन्होंने पराठे वगैरह ये वो किए होते हैं। और खासतौर पर ईद आती है उसके ऊपर ये घर में कड़ियाँ वगैरह बनती है, उसके साथ जो नान होता है, स्पेशली जो तिलों वाला कुलचा होता है, वो ज़्यादा मज़ा है उसके साथ। जो हमारी खवातीन है ना, वो सहरी बना के और घर में रोटियां पका के थक जाती है। उन्होंने ज़रा ईद की तैयारी करनी होती है। उनकी कोशिश ये होती है कि ये रोटियां जो है, ये नान जो है, ये बाहर तंदूर से लाए जाएँ ताकि हमें चूल्हे के आगे ना खड़ा होना पड़े। नान भाइयों के मुताबिक आम दिनों की निस्बत ईद पर नान की फरोख्त गैर मामूली होती है। बेहतरीन नान की तैयारी के लिए दानेदार ईस्ट को खमीर में डालकर आधा घंटा छोड़ा जाता है, जिससे नान ज्यादा फूलता है और जायका भी आला होता है। बेसन वाला होता है, आलू वाला होता है, कीमे वाला होता है, चिकन वाला होता है, जो है ना कलवंजी वाला होता है, धनिए वाला होता है, ठीक है जी, थोम वाला होता है, ठीक है। तो ये ईद पे ज़्यादा इसलिए बिकता है, छुट्टी होती है, मेहमान बहन भाइयों ने एक दूसरे के घर आए होते हैं, तो इसलिए फिर जो है ना वो सालन पका होता है तो आके खाते हैं नान। शहर के जिस भी तंदूर पर चले जाएं, आपको आलू वाला, कीमे वाला, चिकन, बेसन, कलवंजी, तिलों वाला, पुदीने और धनिए वाले नान की फरमाइश करते शहरी ही नजर आएंगे। ईद त्यौहार पर जहां दीगर मामूलाते जिंदगी और कारोबार बंद होते हैं, वहीं पर खवातीन की रोटियों की पकवाई से भी छुट्टी होती है। इसीलिए घरों में मजे मजे के पकवानों की तैयारी के बाद रोटियों की निस्बत बाजारी नानों को ही तरजीह दी जाती है। कैमरामैन अली अदनान के हमरा इमरान यूनुस, लाहौर। उधर ईद उल फितर का तीसरा रोज़ चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सैयद अली अब्बास बुखारी ने अहलिया शीरी अली अब्बास के साथ मिलकर मज़े के पकवान बनाए। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर कहते हैं इस मरतबा ईद पर गैर मामूली हालात का सामना रहा है। कोरोना वायरस और फिर तैयारी की तबाही के दिलखराश वाक़े ने अफसरदा किया है। ईद का तीसरा रोज़ और तीसरे रोज़ भी शहरियों के मेल मिलाप और दावतों का सिलसिला जारी है। हम मौजूद हैं चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी की रिहाइशगाह पर। देखते हैं कि वो ईद किस तरह मना रहे हैं। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी न सिर्फ अहले खाना के साथ ईद मना रहे हैं, बल्कि किचन का महाज भी संभाले हुए हैं। अहलिया शीरी अली अब्बास के साथ मिलकर खूब कुकिंग की, खुश जायका खाने बनाए, जिनमें देसी मुर्ग, दही बैंगन, मूंग मसूर की दाल, जीरा चावल, शामी कबाब और खीर से दस्तरखान को खूब सजाया। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर कहते हैं ईद के तीनों अयाम में MCL अफसरान को मुतहरिक रखा, जबकि घर के काम भी कर रहे हैं। ईद इंतहाई सादगी से मनाई और साथ साथ शहरियों को म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी के अमूर भी निपटा रहा हूँ। ये ईद आपको पता है कितनी रंजीदा है,
एक त्यारे का हादसा हुआ है, इसलिए हमारे सारे के दिल बड़े गमगीन हैं। फिर कोरोना के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं और ये पैंडेमिक फैला हुआ भी है, लॉकडाउन भी है, आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं, तो लिहाजा ये मिली जुली है। शीरी अली अब्बास का कहना था कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस कहीं जाने का मौका नहीं मिला। घर में हर तरह के पकवान बना लेते हैं। अली के पास हमारे लिए वक्त नहीं होता, घर में बैठकर भी ऑफिस में ही होते हैं। खिला रही हैं अली साहब को, और क्या कुछ स्पेशल लगता था? स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है। अली की फेवरेट है जी देसी मुर्गी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कढ़ाई की फॉर्म में हो, शोरबा हो, कुछ और, उनको बहुत पसंद है। सो अब यही बना लिया आज। और बच्चों को चूँकि वो वेजिटेरियन है, ज़्यादातर वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उनके लिए उस हिसाब से बना लिया। चीफ कारपोरेशन ऑफिसर अली अब्बास बुखारी ने एहलिया शीरी अली अब्बास और साहबजादे सैयद अली अब्बास के साथ मिलकर दस्तरखान सजाया। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब बात करें कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से शहर के 2 टीचिंग अस्पतालों के एमएस तैनात कर दिए गए हैं, जबकि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का चार्ज भी सौंप दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से जारी करदा मरासले में प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद फारूक सुल्तान खान को मुस्तकिल बुनियादों पर एमएस पीआईसी का चार्ज सौंप दिया गया है। प्रिंसिपल वुमेन मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सबाहत हबीब खान को एमएस लेडी वेलिंगटन अस्पताल तैनात किया गया है, जबकि एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। उधर रहनुमा पीटीआई मलिक फ़कीर हुसैन बारा की बहन की रस्म कुल मस्जिद दाता हंजर पीर हंजरवाल में मुनक्किद हुई। शुरका ने मरहुमा की बुलंदी दर्जात के लिए फातिह ख़्वानी और दुआए मग़फ़िरत की। मलिक फ़कीर बारा की बहन की रस्म कुल में रुकन सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा, हाजी नियामत अली बारा, मलिक फ़कीर नंबरदार, मलिक अकरम, मलिक शफीक, मलिक वज़ीर बारा, मलिक अज़हर हुमायूं, मलिक फैसल सैफ खोकर, हाजी अरशद, मलिक फ़ारूक खोकर, मलिक शाहिद खोकर, आबिद बारा, यासिर बारा समेत अजीज़ व क़ारिब और अहल खाना ने शिरकत की। इस मौके पर मरहुमा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत और मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। आपको बताएं कि गवाल मंडी कैमरा मार्केट में आग भड़क उठी, हर तरफ धुआं फैल गया। रेस्क्यू 1122 ने जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग क्लासिक डिजिटल इंस्टॉलमेंट दुकान में लगी। दुकान के गोदाम में आग लगने से पूरी मार्केट में धुआं फैल गया। ये दुकान इमरान हकीम की मलकियत है। यहाँ से पूरे मुल्क में कैमरे, सेल, बैटरीज और दीगर आलात भिजवाए जाते हैं। रेस्क्यू 1122 के अमले ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। दुकान के गोदाम में मौजूद कैमरे, बैटरी, सेल्स और वीडियो फिल्म बनाने के आलात को नुकसान पहुंचा। और अब बात करें कि पंजाब तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन अथॉरिटी 2.5 साल बाद भी फ़ाल न की जा सकी। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने का मकसद पूरा न हुआ। साबिक़ हुकूमत ने ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए 2017 में पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की थी। ताहम अभी तक अथॉरिटी का बाकायदा दफ्तर भी नहीं बनाया जा सका और ना ही स्टाफ तैनात किया गया है। इस वजह से ख़वातीन से मुतल्लिका केसेस बर वक्त हैंडल नहीं किए जा सकते। चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कनीज़ फातिमा चद्दड़ का कहना है कि महदूद वसाइल में भी अपने फ़राइज़ बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा करके कुछ लोगों को अपने साथ रिक्वेस्ट करके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से अपने साथ किया, क्योंकि देखिए एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। जो वर्किंग आपकी है और फिर पूरे पंजाब की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन हर्डल्स डेफिनेटली मुझे पूरा साल हो गया है मैं फेस कर रही हूँ। अथॉरिटी को खातिर खा बजट भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से लाहौर में वीमेन प्रोटेक्शन सेंटर नहीं बनाया जा सका। रवां साल पंजाब हुकूमत ने 6 करोड़ रुपए देने का वादा किया, मगर वो भी जारी नहीं किए जा सके। कनीज़ फातिमा चद्दड़ का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी ताखीरी हरबे इस्तेमाल करती है। मैंने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट अपनी बनवाई है 1 ईयर की, जो मैंने काम किए हैं विदाउट गवर्नमेंट की एक पेनी लिए। मैंने बहुत वर्किंग की है पूरे पंजाब में, और मैं इंशाल्लाह वेरी सून अपने पीएम को और प्रेसिडेंट को वो प्रेजेंट करने भी चाह रही हूँ, सीएम साहब को भी, और मैं दिखाना चाह रही हूँ कि अगर बजट के बगैर कोई इदारा इतना काम कर सकता है, तो अगर इस इदारे को बजट दे दिया जाता ऑन टाइम, तो आप देखिए कि हम कितना काम कर सकते थे। मौजूदा हुकूमत ने ख़वातीन के हकूक़ और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के दावे किए थे, मगर अभी तक ये दावे सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक ही महदूद हैं।